an honor. If you ask me how safe your pictures are, they are not at all safe. Anything that's on your mobile or on your computer, as long as it is connected to the internet, please understand that it is just, many people tell me I don't share it. मैं अपनी pictures कोई share ही नहीं करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. आप share नहीं करते हो, but there are so many people who are anyway taking the pictures from you. So let me give you one example. Like, when you install your mobile apps, doesn't it ask for access to your gallery? So who's made the mobile app? It's just a developer. Like, she has a team that develops apps. Now let's say she creates an app for, Book My Show or for Mukta E2 or anybody, and they say, okay, we want to, have access to your images. So what do you mean? What do you mean when they say that they need access to the gallery, the entire gallery? So whatever photographs you're storing, somebody else can also see. It's just not the Google or the Facebook, it's also the owner of that particular app. So like, in a recent case also, a lot of medical data has been breached. A lot means lot. So that also included pictures of to a gynac especially. But those pictures also, you think that it stays only on your phone and in the gynac's phone. No, it has gone all across. So nothing is safe. So, unfortunately we are in the era where we have to be like scared at every step if you're using the internet. So basically when you download an app and the first thing that the phone asks you, the notification that should you... And if it still doesn't work, who's at loss? Not we people. Those guys. So I would rather than go to the, to the internet, to the browser and then book a ticket, than take a chance of giving him access to my entire gallery. Makes sense. So basically with the digital outbreak, who is the most vulnerable segment of users? Like, are they children, youth, old age? Who are they? So, well, unfortunately, it's not age specific, it's not gender specific. Yes, when it is targeted abuse, then there is a specific age or a gender over there. Otherwise, it's each and every user who's in a hurry, who's not applying common sense, who's not applying logic. It's whatever you will do in a physical world for your safety, for your privacy, is exactly what you do in a cyber world. But just because the medium is built in such a way that the speed is so much, you're always very impatient and in a hurry that if I don't do it now, then it's lost. So that's where we fall prey to. So it's irrespective of age and gender. Like, I have a client who's as young as 11 and another one is as old as 82. And men, women, all in. So really not particularly age specific. And how strict, like if you commit a cybercrime today, how strict are the punishments for it? Like, what goes behind the bar? So if you see, if it's only as per the IT Act, then it's not such severe. But then what the police stations do, they combine it with the, with the other code also, IPC codes also. Then it becomes very, very harsh. So, but of course they are all available. Some of them aren't. So you can try once if you want to, like, just be proactive in spreading a lot of awareness. So they are working quite a lot. The issue is that the criminals are not even just like 10 steps, but they are 100 steps ahead of us. So, as somebody was saying yesterday, it is like, what, they just need to try 1,000 times, and one time, if it strikes you, you're gone. This was the superintendent of police, Dr. Bal Singh Rajput was saying. I was listening to him yesterday. But we consumers, we citizens, have to prevent from getting attacked all 1,000 times. So every attack we have to, like, take care. Esteem, your self-worth, I've had clients who've suffered from clinical depression, addictions, obsessions, all of this, and the worst it can go till someone really getting paranoid about this falling into the real world also. See, the more time you are engaged into cyber world,
the line gets very thin between real and virtual. And we've had cases where it started in the real world and gone on to virtual world, or vice versa. So that's where it gets very, very harassing and very difficult for people to stay away. So for example, if it's an alcohol addiction, it's easy because I can completely abstinate you from that. But when it comes to internet, when it comes to social media and the exposure, internet is not only used for this purpose. It has become an integral part. Right from your alarms to your entire calendar management, appointments, everything we use. Communication is largely on internet. So complete abstinence is very difficult. And that's where it gets very, very severe to handle the stress that comes with it. डिफरेंट टाइप का वीडियो हम लोग इस हिसाब से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे थे कि ऐसा थिएटर के अंदर उनके लॉबी में जैसा ये सेटअप करके ऑडियंस को बताना वो बहुत अच्छा है, एक वेरी नॉवेल इनिशिएटिव। आई वांट टू कांग्रेचुलेट द इंडो सिनेमास फॉर दिस। जहाँ तक बात रहती है साइबर सिक्योरिटी की, हमको इतना समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग जितना हो सकते हैं ना उसके बारे में पढ़िए कि क्या हम किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होएगा, ये कार्ड फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो सकता है, पर्टिकुलर डिजिटल वॉलेट का फ्रॉड नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास जितने भी आते हैं केसेस जो भी हम पढ़ते हैं, विक्टिम्स जो आते हैं, मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग हैं, सब चीज़ें पता है। तो शायद फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि ये लोग विक्टिम करते हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें द बेस्ट थिंग इज़ टू रीड अबाउट द केस। रोज पेपर में, मीडिया में इतने सारे केसेस के बारे में बात की जाती है। समझिए कि ये क्राइम्स कैसे हुए हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि क्राइम्स हाँ इस हिसाब से हुए हैं तो आप ही अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हर क्राइम अब कोई नहीं रहा जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, किसी मार दिया तो वो एक क्राइम हो गया, स्कैम कर दिया तो वो क्राइम हो गया। इंटरनेट में क्राइम्स की लेवल ही बदल गई है। वहाँ पे जो डैमेज होता है उस क्राइम का वो दिखाई नहीं देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं किसी ने कुछ बोल दिया है, इसमें इतना क्या हो गया, तो उसका इम्पैक्ट इतना सीवियर हो रहा है कि डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है, ऑब्सेशन बहुत बढ़ रहा है, बॉडी इमेज को लेके, शेमिंग को लेके, सेल्फ एस्टीम चेंज को लेके। तो ये इंटरनेट तो रोज़मर्रा का पार्ट हो गया है। तो ये धीरे 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 हमको इतना इन्वॉल्व कर लेता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इसके बगैर अपने आप को सोचो। पहले अगर हम तैयार होकर निकलते थे, आईने में देख लिया, हमें लगता था हम सही लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। अब लोग पिक्चर लेके डालते हैं ऑनलाइन, अब उस फोटो को अगर लाइक नहीं आए तो सारा कॉन्फिडेंस लोगों का गिर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो हमारे सोशल मीडिया के एक्सेप्टेंस में नहीं होनी चाहिए। और जितना टाइम का वो रखें उसमें एक लिमिट, बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है, बट यस एक टाइम लिमिट अगर रखें तो हम लोग दोनों कॉल्स एंजॉय अच्छे से कर सकें, फिजिकल भी और इंटरनेट भी। आपने जो बात की है साइबर क्राइम, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ होगा नहीं, लेकिन हर दूसरे आदमी के साथ में साइबर क्राइम की प्रॉब्लम होती है। इसे अगर हमसे सोल्यूशन अगर आप क्या करना चाहिए, आप स्पेशली यूथ को फॉलो कर सकें हैं साइबर क्राइम अगर पूरी तरह से कुछ तो हम कर सकते हैं। पहले तो इनिशिएटिव को देखिए तो उनका इन्होंने तो लिया हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन यूथ के हिसाब से मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो जैसे नरानी बता रही थी जो ऑब्सेशन है पिक्चर्स रखेगा, तो वो पिक्चर्स आप पहले लीजिए मत। आप ये समझिए आपके फ़ोन पे अगर कोई इतना पर्सनल पिक्चर है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे तो वो तो आपके फ़ोन में होना ही नहीं। तो मतलब जो ट्रेंड जो चल रहा है वो बोल सकता हूँ कि एक ऐसा ट्रेंड है जहाँ पे काफ़ी पर्सनल पिक्चर्स जो थोड़े बहुत ऑब्सीन भी होते हैं किसी और के लिए वो शेयर किए जा रहे हैं पार्टनर्स के लिए। लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो दो पार्टनर्स में नहीं रहते हैं, वो बहुत जल्दी बाहर फैल जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं जैसे बताऊँगा बहुत सारा फ्रॉड अब इन पेमेंट पे आते हैं, बहुत सारा पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है।
जैसे KYC के लिए फ़ोन आ रहा है या तो बोल रहे हैं आपका कार्ड ब्लॉक है वगैरह, प्लीज़ उसको मत आंसर कीजिए, ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए, डायरेक्टली अपने बैंक को फोन कीजिए, या तो अगर आपके पास जैसे पेटीएम का वॉलेट है आप ऐप पे क्लिक कीजिए। लेकिन कोई भी जो फ़ोन करके बोल रहा है और फिर डराने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपका कार्ड चलेगा ही नहीं, आपका वॉलेट चलेगा ही नहीं, ये सब चीज़ों से डरने की बात नहीं है। लास्टली जो हमारे मतलब हर कोई डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और वो बाई डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनली इनेबल्ड आते हैं। ये हम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका कार्ड नंबर और CVV मेरे को मिल गया तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास OTP या पिन नहीं होएगा मेरे पास। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए मेरे को OTP और पिन की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ वो 16 अंकों का नंबर चाहिए, एक्सपायरी चाहिए और पीछे का CVV चाहिए, बस। उससे मैं इंटरनेशनल प्लान, तो इसके लिए आपका जो कार्ड है उसको आपके बैंकिंग के वेबसाइट पे जाके आप उसको डिसेबल कीजिए कि इंटरनेशनली ये फिर यूज़ ही नहीं हो पाएगा। जैसे आपने पूछा कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूथ यस, सो आई थिंक अगर हम एक सिंपल 3 चीज़ों वाला मंत्र यूज़ करें, विच इज़ जिप इट, लॉक इट, रिपोर्ट इट। जिप इट मीनिंग मैसेज नो, जितना मिनिमम इंफॉर्मेशन आप शेयर करो वो बेस्ट है। खुद की प्राइवेसी खुद वैल्यू करो एंड सोचो कि ये अगर इंफॉर्मेशन मुझे बाहर बतानी चाहिए या नहीं। लॉकिंग इज़ कुछ भी अगर ऐसा आता है जो हमें अनकम्फर्टेबल फील कराता है तो डू नॉट इंकरेज इट एंड डू नॉट गेट स्केर्ड। पहला उसको ब्लॉक करिए एंड दूसरा रिपोर्ट करिए, ताकि ये प्लेटफॉर्म्स को भी समझ में आए कि ये मटीरियल अनकम्फर्टेबल है। ये अगर मंत्र हम याद कर लें, सिर्फ इट, ब्लॉक इट एंड रिपोर्ट इट कैन हेल्प अस सेव आवर सेल्फ बहुत अच्छे से ऑफ ऑल दिस। बच्चों को नोहा तो बहुत है टेक्निकली क्या क्या होना चाहिए, बट दे जस्ट गेट कैरीड अवे कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये सोच के आगे। पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है इंटरनेट में, दैट ऑल्सो चेंजेस अ लॉट। आगे से ज़्यादा ट्रोलिंग कम हो जाएगी अगर हम एक दूसरे के साथ पोलाइट होना शुरू हो जाएंगे। फाइनल वर्ड कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं बोल चुका हूँ, बट आई वुड अगेन वांट टू रिपीट कि दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉवेल इनिशिएटिव। मतलब ऐसा इनिशिएटिव मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था। हम लोग ने अवेयरनेस सेशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में देखे, थिएटर के अंदर ऐसा करना इज़ अ ग्रेट थिंग। एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न, जो मैं आपको 3 चीज़ें बोल चुका हूँ कि आप क्या जो आप नहीं चाहते हो कि वो दुनिया के साथ शेयर हो, वो आपके फ़ोन पे भी होना नहीं चाहिए। जिसका मतलब है आपका जो क्रेडिट कार्ड का भी जो डिटेल्स है, सारे के सारे डिटेल्स हम जो कॉन्टैक्ट्स में डालते हैं वगैरह नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से प्लीज़ अवॉइड पुटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन योर मोबाइल फोन। वो एक चीज़ है, कंप्यूटर को तो आप फिर बंद कर दें, मोबाइल एक चीज़ है जो आपका 24 घंटा ऑनलाइन भी रहता है, तो हर चीज़ सही होती है। कुछ पता हो सकता है, आपके पासवर्ड हो गए, आपके ATM पिन हो गए, सेंसिटिव फोटोग्राफ्स हो गए, कुछ भी हो गया, मेडिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, कि आपके फ़ोन पे नहीं रहे, वो मैं ये गुजारिश करूँगा। सेकेंडली, जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको समझिए कि वो कैसे हो रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस एक बार आपको मालूम पड़ गया और हमेशा ये एक सोच के रखेगा, हाँ ये शायद मेरे साथ भी होता है। आप जैसे उस दिशा में सोचेंगे तो आप खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ ये मेरे साथ हो तो मैंने ये सारे स्टेप्स